Good morning, students. So, how are you all? Okay. So, our today's topic is regional variation in population growth. In our earlier videos, we also discussed about the density of population, distribution of population, and growth of population. So, today regional variation in population growth जो है इसको हम डिस्कस करेंगे. So the growth rate of population during 1991 to 2001 in Indian states and union territories shows very obvious pattern about it. Okay, let's go with the slide. So the spatial pattern of population growth in India is very even. देखो सब जगह पॉपुलेशन पैटर्न जो है या पॉपुलेशन ग्रोथ का पैटर्न जो है वो सेम नहीं है और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. उसके क्या रीजंस हैं? सम क्लाइमेटिक रीजंस हैं, कुछ पर्सनल रीजंस हैं, लोगों के पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से लोग जो इंडिया में एक जैसा या एक जैसी पॉपुलेशन नहीं पाई जाती है. कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम है. तो अकॉर्डिंग टू दिस पॉपुलेशन का ग्रोथ भी कहीं ज़्यादा होता है और कहीं पे कम. So, if we talk about the Nagaland to Dadar Nagar Haveli, it is about 0.58% to 55.88%. देखिए अगर हम नागालैंड की बात करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव ग्रोथ है, माइनस में जा रहा है, -0.58% है. और वहीं हम दादरा नगर हवेली की बात करते हैं तो देयर इज़ 55.88%. So we can divide this great growth rate of population in three parts. States having high growth rate of population and states having moderate growth rate of population, and the other one is states having low growth rate of population. So first, states having high growth rate of population are Meghalaya with 27.95%, Arunachal Pradesh, Bihar, Manipur, Jammu and Kashmir, or the union territory states are Dadar and Nagar Haveli, Daman and Diu and Puducherry. States having moderate growth rate are Chhattisgarh, Jharkhand, Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. And states having low growth rate of population, Nagaland, Kerala, Goa, Andhra Pradesh, Union Territory states, Lakshadweep, Andaman and Nicobar Islands. Okay, so here is one more topic is very important, which is growth of adolescent population. So in this, actually this is a important aspect of population growth in India is the growth of its adolescents. तो अगर हम बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है एडोलसेंट पॉपुलेशन वाला और एडल्सेंट पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो एडोलसेंट जो है इंडिया के अगर एस्पेक्ट से अगर हम देखते हैं तो या इसकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इंडिया में वो बहुत मायने रखती है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. So at present the share of adolescents up to the age group of 10 to 19 years is about 20.9% according to the data of 2011. ठीक है, तो अगर हम देखें 1970 जो आगे दे रखा 1971 की बात हो रही है कि यहाँ पे जो प्रोपोर्शन था एडोलसेंट पॉपुलेशन का वो 21% था और वहीं पे 2011 में इसका जो रेशियो है वो कितना हो गया 12.5%. Okay, so India is on 4th place in adolescent population. Adolescent population it is a group of 10 to 19 years के जो बच्चे होते हैं, ये जो यूथ है. So after पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, इंडिया जो है वो 4th पोजीशन पे आता है. Adolescent population has increased from 85 million in 1961 to 253.2 million in 2011. अगर हम बात करते हैं 1961 में तो 1961 से लेकर 2001 तक जितना इंक्रीज़ हुई है पॉपुलेशन, पहले 85 मिलियन थे उस टाइम पे और नाउ इट इज़ 253.2 मिलियन है. सो सेक्स रेशियो ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 898 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, जो कि हम ऑलरेडी जो हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन वाला चैप्टर था उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन अगर हम एडोलसेंट पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो इट इज़ अबाउट 20.9%. And in this, female adolescent constitute 47.3% and the male adolescents constitute is 52.7%. So the adolescent population, though regarded as a youthful population,
having high potential, but at the same time they are quite vulnerable if not guided and channelized properly. अगर हम अपने यूथ को प्रॉपरली उसको गाइड नहीं करेंगे, हमारे जो 10 से लेकर 19 के तक के ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको प्रॉपर उनको हम अच्छे से नहीं समझाएंगे तो जो है ये मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है इनको देखने को मिल सकती हैं या ये गलत रास्ते पे जा सकते हैं। तो वो चीज़ जो है कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं देखी जाती हैं। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो देखेंगे हम। सो देयर आर मैनी चैलेंजेस फॉर द सोसाइटी एज फार एज दीज एडोलसेंट्स आर कंसर्न्ड एंड सम ऑफ विच आर लोअर एज एट मैरिज, illiteracy, particularly female illiteracy, school dropouts, low intake of nutrients, and high rate of HIV/AIDS infections, physical and mental disability or retardedness, drug abuse, alcoholism ले सकते हैं, है ना। सो इस एंड कमिटेंस ऑफ क्राइम्स, तो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं जो है हमें इस यूथ के में जो है या जो ये वाला जो ग्रुप है इसमें हमें देखने को मिलते हैं। सो इसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन certain policies to impart proper education to the adolescent group so that their talents are better channelized and properly utilized। तो जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट हमेशा निकालती रहती है। तो एडोलसेंट के लिए जो उसने पॉलिसी निकाली है उसके अकॉर्डिंग उनका कहना ये है कि हम हमारे जो बच्चे हैं उनको इस तरह से एजुकेट करें कि उनका जो टैलेंट है उसको एक बेटर तरीके से चैनलाइज किया जाए या प्रॉपरली उसको वो यूटिलाइज कर सकें। So the National Youth Policy is one of the example which has been designed to look into the overall development of our large youth and adolescent population। तो ये एक तरह की ऐसी पॉलिसी है जो कि इस तरह से डिज़ाइन की गई है इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो भी हमारे बच्चे हैं, यूथ है या एडोलसेंट पॉपुलेशन है, उसका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है। सो इसके लिए जो द नेशनल यूथ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड इन 2003 stresses on an all-round improvement of the youth and adolescents, enabling them to shoulder responsibility towards constructive development of the country, and it also aims at reinforcing the qualities of patriotism and responsible citizenship। तो अगर हम इन चीज़ों की बात करते हैं तो इसमें जब 2003 में जो हमारी ये नेशनल पॉलिसी जो आई है तो इसका जो मेन जो मोटिव है वो यही है कि जो हमारा यूथ है उसको इम्प्रूव करें और उसको इम्प्रूव करके जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए। ठीक है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं वो उनमें पेट्रोटिज्म की भावना है या जो है सिटीजनशिप के लिए वो खुद जो है रिस्पॉन्सिबल बने और कंस्ट्रक्टिव बने, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझें। तो इस तरह का जो इम्प्रूवमेंट है वो हम उन बच्चों में या हमारे जो यूथ है या एडोलसेंट्स हैं उनमें हम लेकर आएँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, जो कि अलग अलग वेरिएशंस जो हमने देखे, उसके साथ साथ एक जो टॉपिक देखा हमने ग्रोथ ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन का। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट जो टॉपिक है विच इज़ पॉपुलेशन कंपोजिशन। सो population composition is a distinct field study within population geography with a vast coverage of analysis of age and sex, place of residence, ethnic characteristics, tribes, language, religion, marital status, literacy and education, and occupational characteristics also. So in this section, the composition of Indian population with respect to their rural urban characteristics, language, religion and pattern of occupation will be discussed। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉपुलेशन कंपोजिशन जो है इसमें हम लोग जो है अलग तरह से पूरा जो अगर बात करें एज की, सेक्स की, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, रेजिडेंस की, इन सब चीज़ों के बारे में, रिलीजन है, लैंग्वेज है, मैरिटल स्टेटस है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम इसमें स्टडी करते हैं। और इस टॉपिक में हम आगे बस यही सारी चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं, जो क्या ऑक्यूपेशन है, क्या ऑक्यूपेशन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एजुकेशन है, लिटरेसी है, ये सारे टॉपिक्स में हम जो है आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। इट इज़ डिटेल एनालिसिस ऑफ एज एंड सेक्स, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एथनिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्राइब्स, लैंग्वेज, रिलीजन,
marital status, literacy and education, occupational characteristics etc. in population geography. तो ये सारी चीज़ें जो हम population geography में पढ़ते हैं. Okay, so the next sub topic of this topic is rural urban composition. यहाँ पे हम पूरे टोटल जो है population composition की बात कर रहे हैं, उसमें हम rural और urban का जो composition है उसको देखेंगे कि rural में कितना है, urban में कितना है, या उसमें कितना growth rate है, कितना % बढ़ा है, ये सारी चीज़ें. So अगर rural urban composition की हम बात करते हैं तो composition of population by their respect places of residence an important indicator of social and economic characteristics, and this becomes even more significant for a country where about 68.8% of its total population lives in village, and this data according to the 2011. तो अगर हम बात करें कि इन इंडिया, अगर इंडिया में जो है टोटल पॉपुलेशन जो रहती है अकॉर्डिंग टू 2011 का जो डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है रूरल एरियाज़ में 68.84% पॉपुलेशन पाई जाती है. एंड परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज़ हाई इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन है, विच इज़ 89.97%, एंड दिस इज़ द हाईएस्ट. एंड बिहार एंड इन गोवा, अगर गोवा की बात करते हैं तो गोवा में बहुत कम है. मिज़ोरम इसमें भी कमी है. दिल्ली हैज़ द लीस्ट रूरल पॉपुलेशन, और दिल्ली एक ऐसा सिटी है जो कि सबसे कम रूरल पॉपुलेशन है वहाँ पर. इट इज़ अबाउट 2.50%. Now come to the next topic, rural population in Indian states. So states wise को हम एक बार देख लेते हैं कि किस states में कितनी population है या कितना % है rural population. So इसके according भी हमने इसको तीन parts में divide किया है. States having high proportion, states having moderate proportion and states having low proportion of rural population states. So come to the first, high proportion वाले में चलते हैं. So Himachal Pradesh, which is 89.97%, which is the highest proportion of rural population, and Bihar, Assam, Odisha. So ये जो states हैं ये सारे high जो है proportion वाले rural areas या rural population वाले areas हैं या states हैं. Moderate proportion की अगर हम बात करें तो मेघालय, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ या झारखंड, तो ये ऐसे स्टेट्स हैं यहाँ पे मॉडरेट जो है रूरल पॉपुलेशन पाई जाती है. एंड स्टेट्स हैविंग लो प्रोपोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशंस आर गोवा, मिज़ोरम, तमिलनाडु, केरला, दिल्ली एंड चंडीगढ़. सो इस तरह से इसको हमने जो है कई सारे पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड किया हुआ है. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक इज़ अर्बन पॉपुलेशन एंड इंडियन स्टेट्स. अब पहले हमने बात करी थी रूरल पॉपुलेशन की, अब हम बात कर रहे हैं इसमें अर्बन पॉपुलेशन की. ठीक है, इन इंडियन स्टेट्स. सो रीजन्स हैविंग हाई डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन स्टेट्स आर, इसको भी हमने वही तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, हाई, लो एंड मॉडरेट. बट इसमें मॉडरेट ज़्यादा आते नहीं हैं, इसमें लो और हाई वाले ही हैं, तो उसको मैंने इसलिए इसको टू पार्ट्स में ही जो है इसको डिवाइड करके आपके सामने जो है इसको प्रेजेंट कर रही हूँ. सो हाई में मॉडरेट में ज़्यादा इसमें है नहीं इसलिए. So states having the high degree of urbanization is Goa, Mizoram, Tamil Nadu, Kerala, Delhi, Chandigarh and Lakshadweep. And regions having low degree of urbanization is Himachal Pradesh with 10.3%, Bihar, Assam, Odisha and Meghalaya. So these are some places which have low degree of urbanization. तो यहाँ पे आज हमने बहुत सारी चीज़ों को जो है डिस्कस किया. फर्स्ट एक बार वापस से स्लाइड पे चलते हैं, फर्स्ट स्लाइड पे. सो फर्स्ट हमने बात की थी रीजनल वेरिएशंस इन पॉपुलेशन ग्रोथ, कि किस तरह से रीजनल वेरिएशन देखने को मिलता है पॉपुलेशन ग्रोथ का इंडिया में. सो उसके अकॉर्डिंग वी टॉक्ड अबाउट द हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, हैविंग मॉडरेट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन एंड हैविंग लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. यहाँ पे ग्रोथ रेट हमने दिखा था. इसके बाद हमने बात की थी ग्रोथ ऑफ एडोलसेंट पॉपुलेशन, क्या प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, कितना % है इनका एडोलसेंट पॉपुलेशन का. ठीक है, और क्या पॉलिसीज़ हैं और उनका क्या रोल है. तो पॉलिसीज़ की हमने बात करी, द नेशनल यूथ पॉलिसी जो कि 2003 में इंट्रोड्यूस की गई थी गवर्नमेंट के थ्रू, और उसका जो मेन पर्पस था कि जो एडोलसेंट हैं उनको हम प्रॉपर एजुकेशन दें, प्रॉपर चैनलाइज करें उनको, जिससे कि वो क्या हो, रिस्पॉन्सिबल बने, पेट्रोटिज्म की जो भावना है वो उनके अंदर आए, और उनका जो
कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट है कंट्री के लिए वो हो सके। नेक्स्ट पॉपुलेशन कंपोजिशन हमने पढ़ा, उसमें हमने डिस्कस किया पॉपुलेशन कंपोजिशन क्या है और किस किस टॉपिक को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एंड देन वी आल्सो डिस्कस अबाउट द रूरल अर्बन कंपोजिशन, इसको भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, हाई टू लो, एंड अर्बन को भी हमने देखा हाई एंड लो में। सो आई थिंक यहाँ पे जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लिंग्विस्टिक कंपोजिशन एंड रिलीजियस कंपोजिशन, वी विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रीड करें। ये आपको मैंने एज अ नोट्स फॉर्म में आपके सामने ये जो स्लाइड्स बनाई हैं इसको अच्छे से आप लर्न करें। तो आई थिंक आपको अलग से नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये नोट्स फॉर्म में ही है जिससे कि आप इसको ईज़िली समझ सकते हैं और इसको लर्न करने के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड स्टडी करें।